Hello everyone, welcome again to our educational channel. Today in this video, we'll be understanding a poem from class 10th, unit 4, 4.4, The Height of the Ridiculous. This poem is written by Oliver W. Holmes. Before understanding this poem, I would like to tell you that I've already explained 4.1, 4.2, 4.3 of class 10th itself, and the link to those lessons I have given in the description box. So if you have not watched those lessons or poems, then you can refer the links in the description box. And if you have not subscribed my channel yet, then I request you to subscribe it so that you can get the notification of all the videos which I will be uploading. I must tell you that I am covering entire English textbook of 8th, 9th and 10th, and I have already covered the entire English textbook of 12th, and then we'll move on to the 11th as well. So kindly subscribe it and share with your friends also. Thank you so much. We'll move further with the explanation of the poem. I'll explain this poem in detail. So before understanding the poem, we'll have a look into the poet of this poem. Poet of this poem is Oliver Holmes, Oliver Wendell Holmes. He was born on August 29 to 1809 to October 7 and died on October 7, 1894. He was an American physician, poet and polymath. Polymath means एक ऐसा person जो बहुत ही qualified, knowledgeable है. Okay, he was considered as one of the best writers. His famous poems, prose works are Breakfast Table series. He was an important medical reformer. In addition to this, in addition to author and poet, he was also served as a physician, professor, and he received formal training in law as well. Okay, let us move on to these stanzas. See, I'm doing the stanza 1. What this poem describes in general, I'll tell you. इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं ओलिवर होम्स, वो क्या बोलते हैं कि मैंने एक बार, स्टेंजा 1 में उन्होंने ऐसे बताया कि मैंने एक बार एक ऐसी स्टोरी लिखी थी, एक ऐसी लाइंस लिखी जो लाइंस इतनी फ़नी थी, मैं बहुत फ़नी मूड में था तो मैंने बहुत फ़नी लाइंस लिखी. तो वो लाइंस इतनी फ़नी थी कि मैं हंसते हंसते ऐसा लग रहा था कि मैं मर गया. इतना हंसा कि मैं मरने पे था, इतना ज़्यादा हंसा मैं. तो मुझे ऐसा लगा कि मैंने इतना अच्छे से वो पोएम लिखी है, इतने अच्छे से लाइंस लिखी हैं, तो यूजुअली लोग इसे सराहेंगे, अप्रिशिएट करेंगे. आई रोट सम लाइन्स once on a time in wondrous merry mood. Wondrous means बहुत अच्छा, merry means happy वाला mood, मतलब fun mood. तो मैंने कुछ लाइन्स लिखी एक बार और वो wondrous merry mood में लिखी और सोचा and thought as usual man would say they were exceeding good. और लोग क्या बोलेंगे कि वो बहुत ही अच्छे थे. Stanza 2. They were so queer, so very queer. वो जो लाइन्स थी वो बहुत ही मज़ेदार थी. I laughed as I would die. बहुत ही फ़नी थी. Queer means बहुत ही फ़नी थी. ऐसा इतना मैं हंसा कि मैं मरने वाला था. Albeit means although. In the general way, a sober man am I. मैं बहुत ही sober man हूँ, शरीफ हूँ, simple हूँ, but मैंने फिर भी वैसा लाइन्स लिखा. Stanza 3 पे आते हैं हम. I called my servant and he come. मैंने मेरे सर्वेंट को बुलाया. थर्ड स्टेंजा में वो क्या बोलते हैं कि मैंने मेरे सर्वेंट को बुलाया और मेरा सर्वेंट आ भी गया. I called my servant and he came. हाउ काइंड इट वॉज ऑफ हिम. वो बहुत ही काइंड था, बहुत ही अच्छा सर्वेंट था और बहुत ही काइंड था वो. टू माइंड अ स्लेंडर मैन लाइक मी ही ऑफ द माइटी लिम. वो क्यों काइंड था, क्यों इतना अच्छा था? वो इतना अच्छा है कि वो एक मेरे जैसे एक कमज़ोर, वीक, पतले से इंसान की इतनी देखभाल करता है. वो खुद बहुत स्ट्रांग था. स्लेंडर मीन स्लिम. वो राइटर अपने लिए बोलते हैं कि मैं खुद वीक था, कमज़ोर था. माइटी लिम्स आपको पता है हड्डियाँ उसकी बहुत ज़्यादा वीक, ताकतवर थी. किसकी? सर्वेंट की. वेरेज हमारे जो राइटर है वो बहुत ही वीक थे. तो वो क्या बोलते हैं, उस बहुत अच्छा है वो कि मेरा बहुत ख्याल रखता है. मैंने उसको बुलाया और वो आ भी गया और मेरा ध्यान भी बहुत रखता है वो. These to the printer आई एक्सक्लेम्ड. कि मैं उसने क्या बोला अपने सर्वेंट को, राइटर ने अपने सर्वेंट को बोला कि ये जो लाइंस है वो प्रिंट करने के लिए दे दो. मैंने लिखी हैं कुछ लाइंस, उसे प्रिंट करने के दे दो. ये उन्होंने बहुत मजाकिया तौर पे बोला, ह्यूमरस वे में.
और बाद में जैसे ही उसने ये ह्यूमरस वे में जाके वो दिया अपना लिखा हुआ पेपर दिया, तो वहाँ पे वो क्या बोलते हैं राइटर उसे कि इसे जल्दी से दे दो, अगर नहीं दिया तो कुछ तो हो जाएगा, मतलब ये डेविल टू पे, कुछ तो हो जाएगा। तो ये उन्होंने मजाकिया तौर में अपने सर्वेंट को बोला। तो अभी वो सर्वेंट क्या करता है, वो सर्वेंट उनसे पेपर ले लेता है और उस पेपर को वो देखता है। जैसे ही वो पेपर को देखता है, एक नज़र पड़ती है उसकी फर्स्ट लाइन पे, और जैसे वो फर्स्ट लाइन पढ़ता है तो उसका जो फेस है वो पूरा मतलब ऐसा हो जाता है कि अभी उसे हंसी आने वाली है, हंसने ही वाला है वो। ही टुक द पेपर एंड आई वॉच्ड, उसने पेपर लिया और मैं देख रहा था। आई सॉ हिम पीप विद इन, मुझे ऐसा लगा कि वो शायद पीप कर रहा है, मतलब देख रहा है, इंटरफेयर कर रहा है, मेरे लाइन्स को पढ़ने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसने फर्स्ट लाइन रेड किया, as the first line he read, his face was all upon the grin, उसका जो पूरा फेस था वो ग्रिन मतलब एक स्माइल आना फेस पे, हंसना। तो वो हंसने की कोशिश कर रहा था, हंसने ही वाला था। ही रेड द नेक्स्ट द ग्रिन ग्रू ब्रॉड, वो नेक्स्ट रीड किया उसने, जैसे नेक्स्ट लाइन सेकेंड लाइन रीड किया तो क्या हुआ, उसकी जो ग्रिन थी मतलब उसकी जो स्माइल थी वो और ज़्यादा ब्रॉड हो गई, वो और ज़्यादा हंसने लगा। इतना हंसने लगा कि उसकी स्माइल इतनी ब्रॉड हो गई कि पूरा मुंह ही कवर हो गया, ईयर टू ईयर तक, मतलब एक कान से दूसरे कान तक उसकी स्माइल ही जा रही थी। और जैसे ही उसने थर्ड लाइन रीड की तो उसके हंसने की अभी आवाज़ भी आने लगी। पहले तो सिर्फ स्माइल कर रहा था, अब चकलिंग नॉइस के साथ वो हंसने भी लगा, जो मुझे सुनाई दे रही थी। ही रेड द नेक्स्ट द ग्रिन ग्रू ब्रॉड and shot from ear to ear. He read the third, a chuckling noise I now began to hear. अब उसके हंसने की आवाज़ आ रही थी जैसे उसने तीसरी लाइन पढ़ी, और मुझे भी वो आवाज़ हंसने की उसकी आने लगी। The fourth he broke into a roar, जैसे उसने फोर्थ लाइन पढ़ी तो वो मतलब हंस के वो पागल हो रहा था। फिफ्थ लाइन पढ़ी तो इतनी उसे हंसी आई कि उसके वेस्ट बैंड, मतलब आप ऐसा बोल सकते हो कि उसके वेस्ट पे जो बटन था, जो उसने कपड़ों पे डाला हुआ था, वेस्ट पे जो कपड़ा बेल्ट डाला हुआ था, उसका जो बटन था वो बटन ही खुल गया, वो इतना ज़ोर से हंसा। और जब उसने सिक्स्थ लाइन पढ़ी तो उसके 5 बटन्स खुल गए, टूट गए। और ये वो मतलब हंसी को फूले समा नहीं रहा था, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था वो अपनी हंसी। द फिफ्थ हिज वेस्ट बैंड स्प्लिट, द सिक्स्थ ही बर्स्ट 5 बटन ऑफ एंड टम्बल्ड इन अ फिट, तो वो खुद को संभाल नहीं पाया। 10 days एंड नाइट्स, और वो हंसते हंसते गिर ही गया नीचे, ठीक है। तो वो इतनी तरीके से वो इस तरीके से वो खुद को संभाल नहीं पाया और गिर गया। 10 days एंड नाइट्स विथ स्लीपलेस आई वॉच दैट रेज्ड मैन, और वो इतना हंसा कि हंसते हंसते उसकी तबीयत खराब हो गई। तो अब उसके बाद क्या हुआ, 10 दिन रात और दिन में उसको राइटर को नींद नहीं आ रही थी, उसको वही उसका चेहरा सामने आ रहा था, इतना हंसता हुआ कि वो हंसते हंसते बीमार पड़ गया। अब राइटर को उसको उसकी देखभाल करनी पड़ी क्योंकि वो हंसते हंसते बीमार पड़ गया था। एंड सिंस आई नेवर डेयर टू राइट एज फनी एज आई कैन, तो उस दिन बाद से मैंने इतनी फ़नी राइटिंग कभी लिखी ही नहीं कि कोई पढ़ के उसे हंस हंस के पागल हो जाए, हंस हंस के बीमार हो जाए। इतनी फ़नी राइटिंग मैंने उसके बाद से कभी नहीं लिखी। तो ये था हमारा इस लेसन का स्टोरी, इस पोएम का स्टोरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए, बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।